So basically during absorption, we have different components of the alimentary canal. We are first of all starting from mouth. Some amount of food, not amount of food, some drugs, some chemicals are being absorbed in the buccal cavity, or we can say the oral cavity. Then they pass through the esophagus, then stomach. A little absorption will take place in the stomach, and in next there is absorption in the maximum absorption that is going to be take place in the small intestine, and finally to large intestine. It has to be passed out from the large intestine through anus. Is it clear? So for this we will write the first point is that absorption basically is a process with the help of lacteals or the villi that lines the intestinal mucosa. मतलब inner lining of the alimentary canal जहाँ पर वो present होती है. From there the food has to be absorbed with the help of lacteals and the villi. And villi are the singular form of villi. Villi क्या होती है? Basically these are single projection which are present in the small intestine. Is it clear? So absorption is the process. As we know, we have started. We have also studied that in the process of nutrition we have 5 sub steps. What are the five sub steps? In initial lecture we have read about the 5 steps of nutrition. Ingestion. What are those? You have also read this in class 7 and also in class 10. Tell me. Anyone? Don't hesitate to speak. Ingestion, digestion, next. Absorption, assimilation, ingestion. And at last it is egestion. Clear? So basically we have also read ingestion, we have also read digestion, in which part किसका digestion होता है. Then हम लोग now we are going to be कौन सा part? Absorption. Yes or no? So absorption क्या होती है? It is the process by which the digested food, the end product of the digested food, that is going to be absorbed. Yes or no? By which end product of digestion, end product of digestion that passes through the intestinal mucosa, yes or no, into the blood or lymph. Are yes or no? With the help of blood or lacteals. So with the help of actually villi, and at the base there is lacteals. आगे ना? Yes or no? Blood or lymph. Lymph क्या होता है? These are the tissue fluid. Yes or no? अच्छा, this process can be takes place by different modes. There you are going to be as you know, we have also read about membrane. I think you have also read this in cell chapter. So from there, cell membrane is selectively permeable. So there is different kinds of movement. There is active movement, there is passive movement, there is facilitated transport. All this kind of movement you are going to study in plant physiology in the transportation chapter. Yes or no? So here this the component of digested food in the process of absorption, basically these are absorbed by different means, different process. There will be active process, there will be passive process, there will be facilitated that is going to be occur with the help of some special protein. So we have three kind of transportation: active transportation, passive transportation, and facilitated transportation. Yes or no? Yes, sir. So it is carried out by
passive as well as it may be also active. In the wherever active word is going to be used, it means there is a use of ATP. Yes or no? Means जहां पर भी एक्टिव आएगा मतलब वहां पर क्या है, एनर्जी का यूज तो होना है. मीन्स दिस प्रोसेस इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव मूवमेंट है, हाँ कि ना? हेलो. Yes, sir. एंड यहाँ पर भी फैसिलिटेट का मतलब ऐसा करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ चैनल प्रोटीन्स और वी कैन से स्पेशल प्रोटीन्स. यस और नो? फैसिलिटेटेड transport protein and this is done by some special kind of protein. So passive transport, it may be active transport or it may be facilitated transport. Clear? Facilitated transport mechanism. Is it clear to everyone? Yes. So if we are discussing that there is in different part of the alimentary canal a small amount of monosaccharides. And what are the monosaccharides? You all know better. Yes. Give some example of monosaccharide. No one? Glucose. Yes. Or glucose, fructose, all these are the monosaccharides. Yes or no? Monosaccharides. What? No, monosaccharides only. Okay. So these are the monosaccharides. Yes or no? So these are going to be absorbed. अब जो छोटे-छोटे molecule होंगे या simple molecule होंगे, so they are going to be absorbed by the process of passive transport without getting use of energy. Yes. So what I can say, a small amount of monosaccharides like glucose. Yes or no? In next we have amino acids and some electrolytes. And some of electrolytes. And in electrolytes, what are those? Anyone? Like chlorides. These are generally absorbed by passive process. Yes or no? Generally absorbed by passive. We can say that is simple diffusion. Yes or no? Yes, sir. आगे बढ़ो. Yes. Do it fast. And the passage of these substance should depend on, or it would depend on concentration gradient. अगर simple है, अगर passive है, तो concentration gradient होना चाहिए. Yes or no? Yes, sir. हाँ. And there is some amount of substance like glucose and some glucose and some amino acids. These are being absorbed with the help of some special carrier protein, and this mechanism is known as facilitated transport. Is it clear to everyone? क्या बोलते हैं इसको? Facilitated transport, जहां पर special kind of carrier protein आ जाए. क्या इतनी बात याद रखोगे? हाँ. हाँ.
तो इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, एक होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। क्या होता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, so the transport of water is done by or we can say transport of water depends on osmotic gradient, depends on by the process of osmosis, and it will depend on osmotic gradient. Yes or no? Osmotic gradient means जिधर gradient ज्यादा होगा तो उधर high gradient to low gradient पास होगा. Yes or no? Clear everyone? Yes. And it is, I think it is already understood that in active transport there is the requirement of energy. Yes? Yes. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कुछ एमिनो एसिड्स हैं, जैसे कुछ आपके पास मोनोसैकराइड जैसे कि क्या है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट में जो सोडियम आता है, इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करना पड़ता है. यस, तो ऐसा लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक एमिनो एसिड, सारे नहीं कुछ, एंड मोनोसैकराइड में जैसे कि ग्लूकोज आ जाएगा, मोनोसैकराइड जैसे कि ग्लूकोज. यस और नो? इलेक्ट्रोलाइट like sodium are absorbed by active transport. Yes or no? Everyone active in the class? Yes, sir. It means there is a requirement of energy. So for this transport, is it clear? So in this process, the ATP will be spent out. ATP का खर्च होगा, then फिर ये वाला प्रोसेस होगा. क्लियर है? Should I move to next? Hello. Yes, sir. हाँ, write down the next topic. इसी में एब्जॉर्प्शन के अंदर कि एब्जॉर्प्शन इन बक्कल कैविटी. एब्जॉर्प्शन इन बक्कल कैविटी. Everyone got it? So absorption in next topic, absorption in buccal cavity. So first point इसमें क्या लिखेंगे आप लोग कि there is no such significant absorption. Yes or no? No absorption of digested food. Yes or no? क्योंकि वहाँ पर अप्रोक्स फूड स्टार्ट से कितना परसेंट डाइजेशन होता है? 30%. Yes or no? याद है कि नहीं है? हाँ सर. हेलो. Takes place in oral cavity. We can call it oral cavity or we can also call it as buccal cavity. हाँ कि ना? बक करने वाला कैविटी का नाम क्या है? बक्कल कैविटी. क्लियर? और if we combine the buccal cavity as well as pharyngeal cavity, then what will we call that cavity? Common cavity. Buccopharyngeal cavity. हाँ, तो pharyngeal की थ्रू बक करते रहो तो क्या बोलेंगे? buccopharyngeal cavity बोलेंगे. हाँ कि ना? So in this part only some chemicals or it can be medicine. Yes or no? And alcohol. The person who are taking alcohol, इसलिए उसको शुरुआत में ही लेते ही नशा
आना शुरू होता है, इधर उधर लड़खड़ाने लगता है। और अल्कोहल कंज्यूमिंग से क्या होता है, सेरेबेलम को डिस्टर्ब करता है। सो डूइंग दिस द पर्सन आर मूविंग हिदर एंड दिदर, कभी इधर लुढ़कते हैं तो कभी उधर लुढ़कते हैं। देखा है कभी पियकर को? हाँ, ऐसा नहीं प्रैक्टिकली कर मत लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। Alcohol are absorbed in buccal cavity. Should I move to next? Should I? Done, sir. Everyone? Yes. Wait a minute. So in stomach, once again I'm repeating, absorption of water, some salts, alcohol, glucose, and few drugs, and like aspirin. All these का absorption कहाँ पर होगा? Stomach में. Clear? In next, absorption in next part कौन सा है? Small intestine. In small intestine. डायमीटर में छोटा है पर लेंथ में बड़ा है, तो नाम जो दिया गया है ड्यू टू डायमीटर। यस और नो? यस। तो इन जो भी सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन होती है, whatever the significant absorption are taking place, all these are taking place in the small intestine. Clear? So in this there is absorption of iron, there is calcium, yes or no? And these are absorbed in duodenum. कहाँ पर? अच्छा ये बताइए, so I am asking that why the elements are absorbed, why not absorbed in solid state, or I am asking in which form the elements are absorbed? Anyone? किस form पे the elements are absorbed? Our body needs elements na, minerals, ions, yes or no, for the requirement. So in which form they are absorbed? Which form? In solid form, in element form, or in other form? If so, then why? Elemental form. कोई तो बोलो।
इतने भी शरीफ मत बन जाओ सर, हमें पता नहीं है। Sir, as a solution with water. आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा ना। हाँ। जो भी एलिमेंट हमें जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ आयन, क्योंकि हम अपने सेल्स उस एलिमेंट को सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के लायक होती नहीं है, तो सिमिलरली प्लांट्स भी ऐसे ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो कभी आपको कहीं सवाल मिलेगा एनसीईआरटी में कि व्हाई इन विच फॉर्म द एलिमेंट्स आर बीइंग एब्जॉर्ब, तो क्या बताओगे, आयंस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में? Ions. अरे अपने बॉडी में सोडियम है कि नहीं है, आयरन है कि नहीं है, तो कहाँ आपको बॉडी में आयरन दिखता है? दिखता है कहीं पे क्या? क्योंकि वो सॉल्युबल फॉर्म में, क्योंकि वो आयन के फॉर्म में, इसलिए आपको दिखता नहीं है। यस और नो? सो दिस आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द आयोनिक फॉर्म। क्लियर? सो आयरन, कैल्शियम इन ऐसा लिखिए, आयरन कैल्शियम आयन आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन डिओडेनम। इतनी बात समझ में आएगी? यस? Yes, sir. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किधर होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम। के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? Jejunum. जेजेनम। तो कहां पर होगा बताइए? Jejunum में. जेजेनम में। यस और नो? If we are talking next, then vitamin B12, which is very important for our body, and bile salts and bile salts are related by which part of our body? Yeah, tell me. Liver. Bile salts are released by liver. Yes or no? And vitamin B12 and bile salts, all these are absorbed in which part of the intestine? Ileum. Ileum. And as we know, in intestine there are large number of microscopic folds or finger-like projections that present in the lumen of the gut. Yes or no? Which are called as villi. And villi, they increase the surface area for the absorption. Is it clear? Yes, sir. So writing the next point, there are millions of microscopic folds, and these microscopic folds are also called as finger-like projection. Finger-like projection are present in lumen of gut. Is it clear? Lumen of gut called as, अरे क्या बोलते हैं इसे? Villi. विलाई। और इसका सिंगुलर क्या होता है? Villus. विलस। एंड इसका एब्जॉर्प्शन का क्या है? यूनिट है। तो विलस को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। आगे बढ़ो क्या? सर एक मिनट। Absorption of carbohydrate. Whatever carbohydrate we have taken, they are going to be converted into glucose and CO2, and CO2 is going to be released out by the process of respiration through the lungs. Means hemoglobin will bind to the CO2 and they are going to be reversed back to the lungs, from where with the help of partial pressure in the lungs वो बाहर रिलीज हो जाती है। क्लियर है?
So if you are talking about absorption of carbohydrate, basically the monosaccharides, मतलब विद द सिंपलेस्ट यूनिट, इसके नीचे कोई इसका छोटा सब यूनिट होता नहीं है। तो जो आपके ब्लड के कैपिलरीज होते हैं उनके हेल्प से कहां पर, विलाई के अंदर, मतलब विलस में, विद इन द विलस दे आर गोइंग टू बी एब्सॉर्ब एंड फाइनली रीच टू द पोर्टल वेन, है ना। और पोर्टल वेन आपका अलग अलग टाइप का होता है, यस और नो। हेपेटिक वाला होता है पोर्टल, और हेपेटिक के मतलब का लीवर के लिए, क्योंकि फिर वहां से उसको लीवर में जाना है। लीवर का काम क्या होता है, फिल्टर करना, फिल्टर करके ही तो दे जाएगा उसको, आगे ना। देन फिर फाइनली वहां से वो कनेक्ट होती है, मतलब लैक्टियल से फूड कहां पे जाएगी, लीवर में जाएगी। लीवर के बाद कहां पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। हार्ट के बाद फिर कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स के बाद फिर वापस हार्ट में आकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ। मैंने क्या बोला, देख ये कोई क्या है, फूड है। क्या है ये, फूड नहीं है, फूड ये है, फूड का निवाला है। क्लियर? दिस इज द पार्ट ऑफ फूड, यस और नो। ये पार्ट है आपके पास। अब इसका डाइजेशन होने के बाद ये किस में होगा, जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो डायरेक्टली विलाई के, विद इन द विलाई में एब्जॉर्ब होकर के डायरेक्टली कहां पहुंच जाएगा, लैक्टियस के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, मतलब डायरेक्टली ब्लड के कैपिलरीज, मतलब पोर्टल वेन में पहुंच जाएगा। फ्रॉम देयर जो उनके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फिर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहां पहुंचेगा, उस ब्लड कैपिलरीज के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर में पहुंच जाएगा। आगे ना, लीवर में इसका फिल्ट्रेशन होगा, जिसको किलिंग करना होगा उसको मारेगा, फिर वहां से फाइनली फिल्टर जो ड्रग्स वगैरह है। एक बात बता दूं मैं आपको, वैसे आप लोग कॉलेज में जानेंगे इसके बारे में, आप कितने पावरफुल ड्रग्स लेते हो इससे ये बताएगा कि आपका लीवर कितना डैमेज होता है। वह आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए, यस और नो। जितना पावरफुल ड्रग्स वी आर टेकिंग, that gonna damage the liver, as the person who are taking or consuming alcohol, उनके लीवर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और इनको बोलते हैं क्या, किरहोसिस, मतलब फाइब्रस बना देता है। their liver is unable to function properly, जिनकी वजह से लीवर डैमेज हो जाएगा तो फिर उसको जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है। जॉन्डिस हो सकता है तो मौत भी हो सकती है, कैसे नो। From the liver they are going to enter in the heart. From the heart it is going to be pumped, yes or no। pumping से क्या होगा, जाएगा लंग्स के पास। अरे हाँ कि ना, ये आपका फूड है, यहाँ से जाएगा लीवर विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, फिर यहाँ पे जाएगा हार्ट, हार्ट इसको पंप करेगा, फिर हार्ट के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में, फिर लंग्स के वापस आएगा हार्ट में, हार्ट से बॉडी में चला जाएगा। सबको ये मैकेनिज्म समझ में आई? यस सर। हाँ सर। तो मैंने बोला जो मोनोसैकेराइड्स है, क्या है बोलो, मोनोसैकेराइड्स are absorbed via blood capillary, within the villi, yes or no। और सिंगुलर में क्या बोलेंगे, विलस, that finally reach to पोर्टल वेन, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाएगा। कहां जाएगा, फाइनली रीच टू पोर्टल सर्कुलेशन। तो लीवर में जाने के लिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, किडनी में जाने के लिए रीनाल पोर्टल सिस्टम है। हाँ कि ना, अरे बोलो ना। यस सर। पोर्टल वेन, क्लियर। तो वहां पे पोर्टल वेन में कौन सा जाएगा, किडनी में जाने के लिए। अच्छा, अगर जब उसको यूज करने के बाद जो एक्सक्रीट करना होगा तो वहां से यूज होने के बाद वो कहां पे जाएगा, किडनी में चला जाएगा, फिर वहां पे फिल्टर हो गया, जिसको वापस लेना वो वापस ले लेगा, बाकी को एक्सक्रीट कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये किडनी पर भी नहीं जाएगा, किडनी में तो बाद में जाएगा जब वो इस्तेमाल हो जाएगा, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा
जब उसकी रेस्पिरेशन हो जाएगी तभी तो उसका एक्सक्रीशन होगा, हाँ कि ना। सो फाइनली रीच टू द पोर्टल वेन। क्लियर। सो अगर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से ग्लूकोज से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। सो वी कैन से एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलोंग विथ सोडियम मतलब Na+ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि बोलो वहां पर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कहां पर, ल्यूमेन में। यस और नो। So writing the next point, absorption of glucose molecule occurs along with sodium ion by active transport. Yes or no? क्या यहाँ पर एनर्जी लगेगा? हाँ सर। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं, एक्टिव सिम्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव सिम्पोर्ट। क्योंकि अगर सेम सिमिलर डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। इनके बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर है। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे इसको, को ट्रांसपोर्टेशन। डू एवरी स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ सर। एनीवन हैज प्रॉब्लम? नो सर। Because concentration of glucose is higher in lumen. Higher in lumen. कोई दिक्कत है? इसीलिए हम लोग क्या बोले, ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं एक्टिव सिम्पोर्ट। क्लियर। आगे बढ़ो। फिर फाइनली कहां पे जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन में। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हो जाएगा लीवर में, लीवर से ब्लड फिल्टर हो जाएगा। लीवर का फंक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ रखते हैं, ठीक है। फिर वहां से जाएगा कहां पर, हार्ट में। हार्ट क्या काम करेगा, हार्ट के कौन सा, राइट वाले पार्ट या लेफ्ट वाले पार्ट से? राइट। पक्का? हाँ सर। हाँ, तो राइट वाले पार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा। पहले ऑरिकल में जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में। पंपिंग का काम होता है वेंट्रिकल का। पंप करेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा वो, लंग्स में। लंग्स में क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा। फिर ऑक्सीजन लेकर के वापस कहाँ पे आएगा, लेफ्ट या राइट हार्ट में? लेफ्ट में। पहले ऑरिकल या पहले वेंट्रिकल? ऑरिकल। फिर ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल पंप करेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, आयोडा। अलग अलग पाथ से पूरे बॉडी में फैल जाएगी और काकड़े को ग्लूकोज या एनर्जी मिल जाएगी। फिर लगेगा हाँ मेरी भूख खत्म हो गई, आगे ना, जो वीकनेस थी सब वीकनेस खत्म हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। यस सर। जिससे पूछा तो जवाब दिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। राइट डाउन द नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन्स। ओके। Absorption of amino acid. If we are talking about amino acid, amino acid क्या है, एक ये कौन से पार्ट में मिला था हम लोगों को, रिटेंटेट में या फिल्ट्रेट में? फिल्ट्रेट में। क्या वो जो चाय पत्ती की जगह होती है या फिर जो नीचे चली जाती है? नीचे चले जाए। हाँ, तो रिटेंटेट होता है जो रह जाता है, बचने वाले को बोलते हैं रिटेंटेट। और जो फिल्टर हो जाता है, जो छन जाता है, वो चाय की जगह आती है, आगे ना।
तो एमिनो एसिड भी आपके पास अलग अलग फॉर्म के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी होता है, तो हम लोग इतना डिटेल से यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो जो आपके पास एल एमिनो एसिड मतलब लेवो वाला और डी वाला मतलब डेक्स्ट्रो वाला, ये अलग अलग है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो जो एमिनो एसिड है आपके पास, ये कहाँ पर होती है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ कि ना, अगेंस्ट द, अच्छा जहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में होगा या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? Against. सिंपल सी बात, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर उसके फेवर में ही जाना होता तो हम एनर्जी मॉलिक्यूल क्यों खर्च करते? यस और नो? तो एनर्जी मॉलिक्यूल इसलिए है ना क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट जाना है। बात समझ में आई? हेलो? हाँ सर। हाँ, so in this amino acid, ये जो amino acid occurring naturally are naturally occurring and absorbed by active transport. Clear? Active transport, and that will be against concentration gradient. Against concentration gradient. Yes or no? ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो ये वाला एमिनो एसिड है ना, ये कौन सा वाला होगा आपके पास, ये एल वाला होगा। क्लियर? एंड ऑल्सो द अदर एमिनो एसिड, अदर में कौन सा आएगा, डी वाला, डी फॉर्म वाला ना, डी एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? पैसिव transport, or we can say they are absorbed passively by diffusion. Yes or no? Passively by diffusion. Is it clear to everyone? Yes. No? Anyone? बोलो। याद रहेगा। ना लिखा दो? चलो कोई बात नहीं, लिख लो। तो मैंने क्या बोला, कौन सा क्या था आपके पास, पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइपेप्टाइड्स, इसके लिए एंजाइम, इसके लिए एंजाइम, डाइपेप्टाइड्स। और ट्राइपेप्टाइड्स के लिए Tripeptidase. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो का बताइए। solution होता है। जो आपके हाँ सॉल्यूशन होता है, एक तो वो जो आप लोग बाहर पढ़ते हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अपने बॉडी में भी होती है जिसकी वजह से सेल के अंदर अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो यहाँ पर आपके अपने इंटेस्टाइन में, अपने क्या बोल सकते हैं, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हम लोगों ने सेल्स का नाम किया था या पढ़ा था, दैट इज इंटेरोसाइट्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या हुआ पार्वती? नहीं इशू बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। Small amount of dipeptides as well as tripeptides, they will enter the enterocytes, जो कि किसका पार्ट है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, where it is being hydrolyzed
hydrolyze to amino acid. Yes or no? By dipeptidase and tripeptidase. And absorbed by the portal vein. Clear? Is it clear to everyone? Yes, sir.